So, as you all know, GSSC is a global stainless steel expo, and we have this dedicated event to serve the stainless steel sector, to bring all the stakeholders together and increase, bring them together to see how they can really increase their business, how they can interact with global and national user industry, and also how can we impart knowledge. So we feel coming together of ISDA and Virgo is very, very significant, because together we will be using ISDA's expertise as an industry leader, as an apex body, and their expertise to bring it together, and also our experience of organizing exhibition, which will together help the stainless steel industry to expand. See, one of the reasons for partnering with Virgo is capable. There are strengths and weaknesses of someone. So Virgo is capable of creating an infrastructure for people to participate. Our strength is to curate that with our knowledge, and we can bring international players here, because we are the official representative of Nickel Institute, Molybdenum, International Molybdenum Association, and we are a member of World Stainless. And you would have seen our NSE list, where Tim Collins is also a member of this NSE, and who is a World Stainless Secretary General. So we wanted to bring, and not only that, the inroads into the government, because government normally shakes hands with a non-profit body or industry body. So we wanted to encash that particular opportunity through ISDA, where we have got the support of Ministry of Steel, our parent ministry. We got the support of Commerce. Commerce is also confirmed. Since their confirmation came just the same, so we couldn't print their logo on that. We have got a confirmation from MSME Ministry. We are waiting confirmation from Railways. We are waiting confirmation from Delhi Metro. We are waiting confirmation from PWD and Urban Affairs. So we wanted to make it a total government supported event because we will be calling all the user industry like NHAI, who are the major users like Railways, the MMRDA, MADA, then all these people will be coming for this exhibition as a user industry. So that is our plan. And not only that, we also planning to bring overseas buyers to the EPC, and we are planning to do a reverse buyer seller meet on the proposed event. So we are doing our efforts, and the rest we leave it to the Almighty, how it shapes up. देखिए जी, मैं एक चीज़ मानता हूँ कि दो दिमाग हमेशा एक दिमाग से बहुत अच्छी होती है और ताकतवर होती है। तो वर्गो का अपना एक क्रेडेंशियल्स है और स्ट्रेंथ है, और ISDA का अपना एक क्रेडेंशियल्स है और स्ट्रेंथ है। तो इन दोनों को हमने साथ में लिया उसको और भी अच्छा करने के लिए, क्योंकि वर्गो एक मार्केट प्लेस प्रोवाइड कर सकती है, एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकती है मेंबर्स के लिए। हम उनको यूजर्स लेके आके देख सकते हैं, हम उनको इंटरनेशनल प्लेयर्स से, जो फॉरेनर्स हैं, उनसे उनका जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो हम लेके आके दे सकते हैं कि हमको क्या करना है। हम अभी बहुत सारे एप्लीकेशंस में स्टेनलेस स्टील को यूज़ कर रहे हैं, तो उसको स्ट्रेंथन करेंगे, उसका एक उद्देश्य है। और दूसरा, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर स्टेनलेस स्टील यूज़ ही नहीं हो रहा है, उन लोगों को पता नहीं कि स्टेनलेस स्टील यहाँ पर यूज़ हो सकता है। तो उसके बेसिस पे हमारी ये कोशिश रहेगी कि उस न्यू एप्लीकेशंस को हम एक्सप्लोर करें और उसमें स्टेनलेस स्टील का ग्रोथ बढ़ाएं। देखिए, अगर आपने टेनिस फॉलो किया तो उसमें दो टर्म यूज करते हैं, एक अनफोर्स्ड एरर और एक फोर्स्ड एरर। अनफोर्स्ड एरर जो है वो अपने हाथ में नहीं है। जैसे आपका हो गया भूकंप, हो गया साइक्लोन, हो गया जिसके चलते मैंने कोई गिर गया, तो वो अपने हाथ में नहीं है। जो भी डैमेज होगा उसके थ्रू से जहाँ डैमेज होगा वो अपने हाथ में नहीं है। बट जो अपने हाथ में है, जिसको हम सही कर सकते हैं, वो है कोरोजन। क्योंकि कोरोजन क्यों होता है? कोरोजन, अगर आप कोस्टल एरिया में नॉर्मल माइल्ड स्टील को यूज करेंगे तो कोरोजन होगा। कोरोजन के लिए कोरोजन प्रोटेक्शन जो स्टेनलेस स्टील है उसको यूज करना चाहिए उस एरिया में। सो यूसेज ऑफ मटेरियल बहुत ही अनिवार्य है इस कोरोजन को बचाने के लिए, कोरोजन से बचने के लिए। और दूसरी बात यह है कि 12 लाख करोड़ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट बजट अलॉटेड हुआ है, और 12 लाख करोड़ अपना कोरोजन लॉस है।
तो ये ऐसा हो गया कि बैलेंस शीट एक जगह एसेट हो गया, एक जगह लायबिलिटी हो गया पूरा। सी जीएसएससी ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म बन गया है, अभी हमको प्लेटफॉर्म को स्ट्रेंथन करना है, और वो प्लेटफॉर्म को स्ट्रेंथन इसलिए करने के लिए जो ISDA का जो सपोर्ट हमको मिला है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप होगा। उनका जो मार्केट इंटेलिजेंस और उनका जो लीडरशिप और इंफॉर्मेशन नॉलेज जो उनके पास है कि ग्लोबली क्या टेक्नोलॉजी आ रहा है और इंडिया में क्या लैकिंग है, इंडिया को स्टेनलेस स्टील का कंजम्पशन बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, तो वो इंटेलिजेंस जब आएगा हम अपने प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे उसके सोल्यूशन ढूंढने के लिए, एंड ऑल द स्टेक होल्डर्स को साथ में लेके आने के लिए, इवन गवर्नमेंट को साथ में लेके आएंगे। इंटरनेशनली अगर इतने सारे लोग अगर इंडिया में आएंगे, सारे पार्टिसिपेंट्स वहाँ पे हैं, तो गवर्नमेंट को भी एक फोरम मिलेगा कि हमको भी एक फोरम मिलेगा, गवर्नमेंट को लेके आके उनसे बात कर सकते हैं। सो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप हम दोनों अपने अपने एक्सपर्टीज लेके आके करेंगे। बिल्कुल है, हम लोग साथ में मिलके सारे इंडस्ट्री, जैसे सर ने बोला अभी कि जो सेक्टर यूज नहीं कर रहा है उनके लिए हम लोग छोटे छोटे इवेंट्स करेंगे, वहां जाके अंडरस्टैंड करेंगे। सी जीएसएससी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, बट हम साथ में बहुत सारी ऐसी चीजें करेंगे जहां पे हम कंजम्पशन को इंक्रीज करने के लिए जो भी एक्टिविटी चाहिए होगा, जो सेक्टर में जाके उसका इंफॉर्मेशन देना होगा या एक्टिविटी करना होगा, वो हम लोग साथ में करेंगे। सरकार से हम यही चाहते हैं कि हमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करे, ताकि जो उनका एस्पिरेशन है विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, ये सब तभी मुमकिन है जब आप डोमेस्टिक प्लेयर को बढ़ावा दोगे और डोमेस्टिक प्लेयर को फॉरेन इंपोर्ट से बचाओगे। थैंक यू।